So good morning students. We are watching Niti Aayog. Okay, Niti Aayog is one institute which is coordinate between central government and state government. Okay, it's define the different kind of principles of central government and which is implemented by state government, and both are coordinate with each other, and both are trying to accelerate growth to the country. That is the main functions of Niti Aayog. We are also watching that some pillars of Niti Aayog. That is, first one is they are deciding what kind of government or central government doing for future to develop our country. Okay, just like still 2025 we are deciding to we are achieving technological development. This is the visions of India right now. So that kind of visions are successfully implemented by Niti Aayog. Okay, also we are watching the appraisal documents. Okay, whatever the 5 years plan is decided by government, central government and state government, that's actually implemented by Niti Aayog. Okay, next is transforming India. Whatever the changes we are watching still last 20 years, that's happened because of Niti Aayog, because Niti Aayog is trying to success that changes. Okay, India is growing fastest growing country, fastest growing economy because of Niti Aayog, because Niti Aayog is trying to transforming India. Okay, Niti Aayog is also concentrate on agriculture sectors. There are also concentrations to given more and more credits for the farmers to extending the agriculture productions. Okay, that is the main motive of Niti Aayog. Also we are observe that Niti Aayog is decided the country's budget and what types of income and expenditures or revenues are collect from various department. That is control and observations are totally in hand of Niti Aayog. That's we are also watching. Next one we are watching, that is global internship summit are also taken by Niti Aayog. There are different types of entrepreneur or businessman came, and they are joining with us and helping to investment in our country. That's we are also watching in Niti Aayog. Also Niti Aayog is implemented the program to not only develop by country but develop a last part of the country, that is called district. Okay, they are trying to changes from taluka level or a village level. Okay, that is the main motive of Niti Aayog. So Niti Aayog उसके मेंबर्स कैसे रहते हैं, तो गवर्नमेंट काउंसिल्स उसमें होती है, सारी कंट्री के जितने सारे चीफ मिनिस्टर्स है और गवर्नर्स है वो इसके मेंबर्स होते हैं। रीजनल काउंसिल्स भी होती है इसमें, मतलब बहुत सारी जो डिपार्टमेंट है जो एक्चुअली कॉन्टीजेंसी सिचुएशंस में हेल्प करते हैं, जैसे अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, सुनामी आ गया, उस सिचुएशन में काम करने वाले मिनिस्टर्स भी इसके पार्ट होते हैं। कुछ स्पेशल इनिविटीज़ भी होते हैं जो इसके पार्ट होते हैं, और इसमें सबसे बड़ा पार्ट होता है प्राइम मिनिस्टर्स का। नीति आयोग में आपको कौन कौन दिखाई देगा, तो फर्स्ट वन चेयरपर्सन, प्राइम मिनिस्टर खुद नीति आयोग होते हैं। उसके वाइस चेयरपर्सन जिसमें 5 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं और 2 पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। ये ऑपोजिट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इन दोनों के पार्टिसिपेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें एक्स ऑफिशियो मिनिस्टर्स भी होते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं, IAS IPS ऑफिसर्स भी इसमें हो सकते हैं। उसी के साथ कंट्री में जितने सारे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं ये भी इसके मेंबर्स होते हैं। ओके, सो नाउ वी आर वाचिंग व्हाट टाइप्स ऑफ वर्क नीति आयोग डन। नीति आयोग क्या क्या करता है अभी हम लोग देखेंगे। पहला है शेयर नेशनल एजेंडा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्री को डेवलप करने के लिए या नेशंस को डेवलप करने के लिए जो भी प्रायोरिटीज़ या स्ट्रेटजीज बनाती है, उनको स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम नीति आयोग का है। मतलब प्राइम मिनिस्टर जो मैसेज देंगे
वो सीएम्स को प्रोवाइड करने का, कंट्री के जितने सारे सीएम्स हैं उनको प्रोवाइड करने का काम नीति आयोग करता है। ओके, जो भी स्ट्रेटजीज या प्रायोरिटीज़ बनाई जाएगी वो मैसेज देना। जैसे अगर कोरोना का पीरियड है तो कोरोना के पीरियड में पीएम की जो स्ट्रेटजीज या प्रायोरिटीज़ होगी उनको चीफ मिनिस्टर्स को बताने का काम नीति आयोग करता है। दूसरा नीति आयोग का वर्क है स्टेट बेस्ड फ्रेंड ऑफ सेंट्रल। ओके, वैसे तो कंट्री के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हर एक स्टेट के सामने उनके ओन चैलेंजेस है। तो इन ओन चैलेंजेस में उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है या कंपैरेटिव एडवांटेजेस की ज़रूरत होती है। तो जितने सारे सीएम है या स्टेट में गवर्नमेंट के जो सीएम्स है उनके साथ एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना प्राइम मिनिस्टर्स के साथ, ये नीति आयोग का काम है। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आइडियाज़ है, मतलब प्राइम मिनिस्टर्स की जो आइडियाज़ है या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो आइडियाज़ है उनको स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम भी नीति आयोग का है। कई बार सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट को कंसल्टेंसी सपोर्ट चाहिए होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ों पे उनको कंसल्टिंग चाहिए होता है, जिसको हम लोग सलाह बोलते हैं, या हेल्प चाहिए होती है। तो ये भी प्रोवाइड करने का काम नीति आयोग करेगा। उसी के साथ हर एक स्टेट को उनकी कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत होती है, तो उस टाइम नीति आयोग उनको हेल्प करेगा। जैसे अभी बहुत सारे इंजेक्शन्स अवेलेबल नहीं है, वैक्सीन्स अवेलेबल नहीं है, तो ये प्रोवाइड करके देने का काम कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से नीति आयोग भी कर सकता है, क्योंकि नीति आयोग ये सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट में एक फ्रेंडशिप का रिलेशन बनाने का काम करेगा। ओके, नेक्स्ट है डिसेंट्रलाइजिंग प्लानिंग। ओके, तो गवर्नमेंट जो भी प्लानिंग करेगी या 5 ईयर्स के प्लान बनाएंगी उसमें वो बॉटम अप मॉडल बनाएगी। बॉटम अप मॉडल मतलब विलेज से लेकर कंट्री तक सबका उसमें पार्टिसिपेशन होगा। पहले विलेज का, फिर तालुकाज का, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का, फिर स्टेट गवर्नमेंट का, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो इस तरह से मतलब जो भी प्लानिंग की जाएगी कंट्री को डेवलप करने के लिए उसमें गांव से लेकर, बॉटम से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट, इन सब के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, राइट। तो इसमें लोकल गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहेगा, यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का भी, नेशनल लेवल का भी सपोर्ट रहेगा जैसे स्टेट गवर्नमेंट, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सपोर्ट रहेगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो सेंट्रल में गवर्नमेंट रहेगी, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, इन सब का सपोर्ट रहेगा। तो ये डिसेंट्रलाइज प्लान है, एक दूसरे को मिलकर हेल्प की जाती है। ओके, इसमें लोकल गवर्नमेंट यानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन भी होता है, नगर पालिका होती है, उसके बाद नेशनल लेवल यानी स्टेट गवर्नमेंट अवेलेबल होती है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसका पार्टिसिपेशन होता है। ओके, नेक्स्ट है नॉलेज एंड इनोवेशंस हब। ओके, सो एक अच्छी गवर्नमेंट बनने के लिए रिसर्च पे ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एक अच्छी गवर्नमेंट, गुड गवर्नेंस के लिए क्या चाहिए? बूस्टर्स ऑफ रिसर्च, यानी रिसर्च को बढ़ावा देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो कंट्री को डेवलप करने के लिए जो भी आइडिया चाहिए, एनालिसिस चाहिए, या एक दूसरे के जो व्यूज़ शेयर्स चाहिए, ये एक दूसरे को बताने का काम नीति आयोग करेगा। ओके, नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशंस। बहुत सारे अगर आप देखोगे तो कंट्री में डेवलपिंग करते वक्त या पॉलिसी या प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करते वक्त आपको कंट्री में बहुत सारी वीकनेसेस दिखाई देंगी या बॉटलनेक दिखाई देंगे। ओके, उसी के साथ बहुत सारी पॉलिसी ठीक से इम्प्लीमेंट होगी ये भी गारंटी नहीं है। ओके, और इफ़िशेंसी एंड इफ़ेक्टिवनेस आपको दिखाई देगा, इसकी गारंटी नहीं है, बट ये इम्प्लीमेंट करने का काम, एक्चुअली दिखाने का काम नीति आयोग करेगा। ओके, मतलब कंट्री की जो प्लानिंग्स है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं, ये देखने का काम भी नीति आयोग करेगा। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव्स एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। अभी फेडरलिज्म का मतलब क्या है? हमारे यहाँ पे 2 टाइप्स की गवर्नमेंट है, एक है सेंट्रल एंड दूसरी स्टेट, तो इसको कहा जाएगा फेडरलिज्म। ओके, तो इन दोनों में कोऑपरेटिव होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में कोऑपरेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी एक अच्छी नेशनल पॉलिसी बनेगी और वो इम्प्लीमेंट भी होगी। ओके, तो और फिर कंट्री का क्वालिटिव और क्वांटिटेटिव दोनों तरीके से क्या होगा? डेवलपमेंट होगा।
तो इसके लिए प्राइम मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स इनके अंदर कोऑर्डिनेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और वो करने का काम नीति आयोग करेगा। ओके, जैसे आप देखते हो अभी यहाँ पे बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट हमारे यहाँ पे कांग्रेस या इंक्लूडिंग है 3 पार्टीज़ की, तो एक दूसरे से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते वो लोग, राइट। तो इनमें कोऑर्डिनेट लाने का काम नीति आयोग करेगा। ओके, और क्या क्या करता है नीति आयोग? इंटर कंसल्टेंसी, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी समझाएगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी समझाएगा, ये कंसल्ट करने का दोनों को भी, ये काम उसका ही है। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस, दोनों में अगर झगड़े हुए, कॉन्फ्लिक्ट हुए, तो वो कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने का या झगड़े सॉल्व करने का काम भी नीति आयोग करेगा। टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशंस, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो स्टेट गवर्नमेंट को भी टेक्नोलॉजी अपडेट करने का काम नीति आयोग करेगा। तो ये दोनों मिल बांट के काम करते हैं, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। ओके, लास्ट पार्ट या जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम कल के लेक्चर्स में देखेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।